Uh, Let's start the session. Sandhya, over to you. Assalamualaikum guys. This is Sandhya Chawla, finally MBBS student from Gambhit Medical College, batch 1. First of all, I heartily welcome you to you all and I hope you all are doing well. Before we start our session, I would like to call my colleague Saqib Javed Arain for recitation. Please Saqib, can you hear me? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Amin. Thank you Saqib for your precious time. Now I would like to call Gaurav Maheshwari, our moderator, and I request him to proceed the session. Thank you so much, Sandhya. Salam everyone. This is Gaurav Kumar Meshwari, finally MBBS student from Gambhit Medical College, batch 1. I welcome you all who has joined us from Gambhit Games, CMC Larkhana, Ghulam Mohammad Mehr Medical College, Sakhar, Pumps Nawabshah, Lums Jamshoro, JSMU Karachi, JMDC Karachi, Liari Medical College Karachi, Liaquat National Medical College Karachi, ISRA Medical College Karachi, and different medical college of Sindh and Pakistan. As you all know, our today's session is about PLEB. For that, we have a great speaker, Dr. Umair Khalil from Chanka Medical College, batch 42. Currently, he is doing his clinical attachment in UK. I request Dr. Umair kindly share your journey experience with us. Chanka Medical College, batch 42, and I graduated in 2018. And since then, I would like to share my journey regarding PLEB, which I have recently passed, and I got my GMC registration. And this session will be a little bit interactive. We got all of your queries. Currently, I'm in UK. I'm doing my clinical attachment. I came to United Kingdom in December 2022-21. Yeah,
So since then I've been here. I done with my PLEB 2 exam, and I got another role in Manchester, which is teaching at Samson Academy. So currently I'm doing my clinical attachment and applying for different job in the NHS as my first job, right? मैंने ये डिसाइड किया था कि आई शुड गो फॉर यूएसएमएल एग्जाम, एंड उस ड्यूरेशन में मैंने यूएसएमएल का कोर्सेज मतलब बाय कर लिए थे, उसको मैंने रीड करना स्टार्ट कर लिया था। तो तब मुझे कोई प्लेब की कोई इंसाइट नहीं थी, मुझे प्लेब का कुछ पता नहीं था कि प्लेब एग्जाम भी कुछ होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू मूव आउट ऑफ माय कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं ये चाह रहा था कि मैं कुछ अच्छा सीखूं, कुछ अच्छी जगह पे अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको कंसिडर करूं, और साथ साथ में बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप अपनी कंट्री को क्यों छोड़ना चाहते हैं। वो रीजंस फाइनेंशियल चीज़ें भी हो सकती हैं, या बेटर इन्वायरमेंट, या बेटर लर्निंग, या बेटर सिस्टम को आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाए। तो वन थिंग इज़ कि आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाई यू वांट टू मूव आउट ऑफ योर कंट्री, बिकॉज़ पाकिस्तान में भी आपको चैलेंजेस आपको फेस करने हैं अगर कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ते हैं। अगर कि किसी भी कंट्री में जाते हैं, लाइक मिडल ईस्ट में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, यूके में जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में, या कनाडा में, तो आपको चैलेंजेस तो फेस करने हैं, ठीक है? तो मेरा रीज़न ये था कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी करना चाह रहा था, फाइनेंशियली जिसको इंडिपेंडेंट लाइफ आप कहते हैं, और उसके साथ-साथ मैं ये भी चाह रहा था कि मेरी जो ट्रेनिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, वो किसी अच्छी जगह पे हो। उसके लिए भी मैंने सिर्फ़ बाहर के लिए के चांसेस नहीं रखे थे, मैंने अपने वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे जो प्लान्स थे वो एबीसीडी थे। तो प्लान ए में मैंने यही रखा था कि मुझे बाहर जाना है, प्लान बी में मैंने यही रखा था कि मुझे अगर कि बाहर जाने का चांस नहीं मिलता, तो मैं प्लान बी में अपनी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में करना चाहूँगा। प्लान सी है कि अगर कि आपको फाइनेंशियल चीज़ें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही हैं, तो आपके पास प्लान सी होना चाहिए मिडल ईस्ट, ठीक है? तो जब मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था, तो मुझे सिर्फ़ यूएसएमएल का ही बताया गया था, जो मेरे सीनियर्स थे चाणक्य मेडिकल कॉलेज में। जब भी मैंने उनसे पूछा, तो हमें फ़ॉर्च्यूनेटली एक सेमिनार हुआ था जो कि बहुत ही छोटी लेवल पे था। उसमें कोई अराउंड 50 स्टूडेंट्स ने फेस टू फेस पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। तो मुझे कुछ मोटिवेशन मिली, मैंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, यूएसए हर कोई जाना चाह रहा है, कराची और डिफरेंट बिग सिटीज़ से तो बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं। जब मैंने इस पे डीप रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला कि आपको इस पाथवे में बहुत ही सब्र चाहिए। यू नीड टू हैव गुड पेशेंस, यू नीड टू हैव गुड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, यू नीड टू हैव गुड सपोर्ट इन फाइनेंशियल थिंग्स एज़ वेल। तो इसमें नो डाउट यूएसएमएल इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइसेंस एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। वहाँ पे अच्छी लर्निंग होती है, फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी होती हैं, बट जो इनिशियल जो उसकी चीज़ें होती हैं, लाइक जब आप उसको पढ़ना स्टेप 1 के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो जर्नी आपकी वहीं से स्टार्ट होती है। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, चैलेंजेस, एवरीथिंग, यहाँ पे आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो इसका खर्चा है यूएसएमएल का, वो है अराउंड 30 टू 40 लैक्स। अगर के कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है लाइक मी, जब मैं यूएसएमएल के लिए जा रहा था, तो मैंने अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसमें इतना-इतना खर्चा आ सकता है, और नंबर 1 थिंग आपकी फैमिली आपसे पूछती है कि आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, और कितने टाइम में आप अपनी फर्स्ट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो जब मैंने इस सारी चीज़ों को देखा, कि मैंने अब खुद रियलाइज़ किया कि इट मे बी माइट टेक अराउंड 4 टू 5 इयर्स टू गेट योर फर्स्ट मैच एंड फर्स्ट जॉब इन यूएसए। तो वो एक चीज़ जो थी, मुझे लगी कि यार इतना तो वेट मैं नहीं कर पाऊँगा, और उसके साथ-साथ जो 4-5 साल हैं वो आपके डबल डबल स्ट्रगल हैं। नंबर 1 स्ट्रगल इज़ जो कि आप पढ़ने वाली करते हैं, वो इटसेल्फ बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो कि क्योंकि उसमें स्कोर मैटर करता है। तो उसके लिए आपको अच्छी एफर्ट्स चाहिए, जो भी स्टूडेंट जो बहुत ही डेडिकेटेड है यूएसए जाने के लिए, तो
आपको इन सारी चीज़ों को देखना होगा। नंबर 1 थिंग कि फाइनेंशियल चीज़ें आपकी सॉर्टेड आउट हैं या नहीं है, आपको फैमिली की सपोर्ट है या नहीं है। नंबर सेकंड थिंग, आपको सब्र चाहिए, क्योंकि मैं 2018 का ग्रेजुएट हूँ और ऑलमोस्ट 3 इयर्स मुझे हो चुके हैं, ठीक है। 2019, 20 एंड 21, 22, तो ये फोर्थ ईयर मुझे चल रहा है। तो मेरी बैच के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूएसएमएलई के लिए अप्लाई किया, उन्होंने सिर्फ स्टेप 1 तक दिया है। वो उनको अभी 3 से 4 साल और लग सकते हैं, या मैक्सिमम अगर वो जल्दी में भी अप्लाई करें तो एटलीस्ट उनको 2 साल और चाहिए उनकी फर्स्ट जॉब सेटल करने में और मैच ढूँढने में। तो मैं यहाँ पे ड्रॉबैक नहीं बता रहा, मैं आप लोगों के साथ वेरी ऑनेस्ट रहूँगा